Dear students, today we are going to study about class 8 Social Science History, chapter number 4, Terrible Decuse and the Vision of a Golden Age. In our last video, we discussed about the terrible people, the Birsa Munda, and terrible groups live and Zoom cultivator. लास्ट के वीडियो में हमने जनजाति समूह किस तरह से जीते थे, बिरसा मुंडा और झूम खेती करते थे, इसके बारे में हमने कल स्टडी की थी. नाउ वी डिस्कस अबाउट सम वर हंटर्स एंड गैदर्स. कुछ शिकारी और संग्रहक थे. इन मैनी रीजन tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Khans were such a community living in the forest of Odisha. They regularly went out on collective hunts and then divided the meat among themselves. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. They used many forest shrubs and herbs for medicinal purpose and sold forest produce in the local market. The local weaver and leather workers turned to the Khans when they needed supplies of kusum and palas flowers to color their cloth and leather. Some were hunters and gatherers. कुछ शिकारी और संग्राहक थे. तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों यानी वनों से प्राप्त होने वाली चीजों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे. वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे. उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोन समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था. इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे. वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे. खाना पकाने के लिए शाल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे
इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को जो स्थानीय मार्केट थी में जाकर बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे कोन समुदाय के लोगों से ही कहते थे। From there did these forest people get supplies of rice and other grains। अब इन समुदायों को चावल और अन्न अनाज कहाँ से मिलता था? At time they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce। At other times they bought goods with the small amount of earnings they had। Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers। But many of them, like the Vaigas of central India, were reluctant to do work for others। The Vaigas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest। It was below the dignity of a Vaiga to become a laborer। तो कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी लेबरर थे, यानी खेत मजदूर थे, खेती पर मजदूरी का काम करने वाले थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को
मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बैगा और के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सके। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। The terrible group often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. This led to their dependence on traders and moneylenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Moneylenders gave loan with which the terribles meet their cash needs, adding to what they earn. What the interest charged on the loan was usually very high. So, for the terribles, market and commerce often means debate and poverty. They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. जिस तरह से जो ट्रेवल पीपल थे, वो प्रायः उन्हें जिस चीज की आवश्यकता होती थी, तो जो चीजें आसपास उत्पन्न नहीं होती थी, तो उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदने और बेचने भी पड़ती। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर, जो मनी लेंडर हैं, महाजनों पर आश्रित हो जाते। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर जो महाजन थे, वह आदिवासियों को लोन देते थे, कर्जा देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत अधिक ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और
अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। सम हर्डेड एनिमल, कुछ जानवर पालते थे। तो मैनी टेरिबल ग्रुप्स लिव्ड इन herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. When the grass in one place was exited, they moved to another area. The Van Gujars of the Punjab Hill and Lawadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gadis of Kolu were shepherd, and the Vakarwal of Kashmir reared goats. बहुत से आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवण लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास समाप्त हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाडिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। इसी तरह से कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये यानी शीफर्ड थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे।